أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ الحمدللہ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیسن ہوگا انشاءاللہ۔ ایک ہمارا لیسن جو 8 محرم تھا یا 7 محرم کی وجہ سے نیٹ کا ایشو ہونے کی وجہ سے رہ گیا تھا، تو تھوڑا سا ہمارا یہ کہ شیڈیول چینج ہوا، ایک جو ہماری کلاس مس ہوئی تھی۔ اب ہم انشاءاللہ کل تھرسڈے کو اسی ٹائم پہ ہم اپنی اشارہ 5 یعنی کہ اشارہ ڈی صفحہ 5 اشارہ ڈی کی کلاس کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک پہنچتے الحمدللہ اب آپ نے خود اپنا جائزہ لینا ہے، خود آپ نے اپنا احتساب کرنا، تھوڑی کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں کہ یہ 2 لیول جو ہم نے کیے ہیں جس میں ہم نے قرآن کو سیکھا، پہلے والی جو ہماری روٹین تھی ایک نماز پڑھنے کی اور قرآن پڑھنے کی، اور جو اب ہے اس میں کتنا فرق ہے۔ اب یہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ جب ہم اپنا مصحف کھولتے ہیں قرآن پاک کے پیجز میں، جہاں جہاں ہمارے مانوس الفاظ جو ہم خاص طور پر گرامر کے حساب سے اس کی واحد جمع یا مذکر مؤنث یا ہم نے پورے ٹیبل کیے ہیں، تو یہ ایک تو یہ کہ بڑی خوشی ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں کیسے قرآن کو لانا ہے، کیسے ہم نے اپنی زندگی اسلام کے دائرہ کے اندر رہ کر گزارنی، اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، کس طرح سے ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی باقاعدہ کلاس کا آغاز کر لیتے ہیں۔ ہم نے اپنے کورس کے شروع میں دیکھا کہ ہمارے ایک پارہ میں 20 صفحات ہیں، اور ہر جو ہمارا لیول ہوگا اس کو 5 پیجز پر ڈیوائڈ کر دیا گیا تاکہ ہم آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں اور سمجھیں۔ شروع کے 4 پیجز میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ کس کے لیے نہیں ہے؟ کافرین کے لیے نہیں ہے، منافقین کے لیے نہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے مثالوں سے سیکھا، ہم نے قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج اور اس طرح کے تمام جتنی بھی چیزیں تھیں ہم نے سیکھ لیں۔ اب ہم سیکھ رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ پہلے انسان ہے جسے اللہ رب العزت نے، جنہیں اللہ رب العزت نے ہدایت نصیب فرمائی۔ گرامر کے ساتھ ہمارے اس کورس کے الحمدللہ 5 پیجز پورے ہونے والے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے اس طرح سے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا کہ اپنے دائیں ہاتھ پر ہر پیج کے 4 پوائنٹر بنا لیے۔ یہ ہمارا پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہ 5واں۔ یہاں تک ہمارے اشارے بھی کمپلیٹ ہو گئے اور ہمارے صفحات بھی۔ اچھا جی، اب ہم ایسا کریں گے کہ مختصر اشارے دیکھ لیتے ہیں، یا اگر ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہمیں پورا اشارہ بھی یاد ہوتا ہے، تو اگر اس طرح سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقین کی صفات، متقین کے لیے ہدایت اور متقین کی صفات، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف، اسی طرح سے 2 رخے، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے، اور ہمارے یہ مختصر اشارے۔ اور چوتھی انگلی کے اشارے ہیں خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے سجدہ اور ابلیس۔ ابھی یہاں پر رہتے ہوئے یہ ہمارا اشارہ جہاں پر یہ آپ کو ایرو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے، ہمیں یہاں پہ یہ پوائنٹر دیکھتے بھی سمجھ آ رہی ہے، یہاں پہ سجدہ یعنی کہ سجدے کی بات بھی ہے، ابلیس کی بھی۔ تو اسی طرح سے آپ اپنے یہ جو بک کے اوپر پوائنٹر لکھے ہوتے ہیں ان کو ایسے ریلیٹ کر لیا کریں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہی ہمیں اشارہ یاد رہ جائے۔ اسما کی تعلیم میں بھی اسماءہم، اسے ہم اسی طرح سے کر سکتے ہیں۔ خلیفہ پر سوال میں خلیفہ کا ورڈ آ گیا،
और फिसलाना और तौबा को हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे कि इसमें कैसे हम अपना इसको कर लेंगे पॉइंट आउट। ठीक हो गया जी। ये हमारे जो मुख्तसर इशारे हैं, अगर किसी को इस तरह से याद रहते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, खलीफा अस्मा सजदा तौबा, खलीफा अस्मा सजदा तौबा। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं एक तारुफ कि ये हमारा जो इशारा है सजदा और इबलीस, इसका पिछली आयत से क्या ताल्लुक है। इससे पहले अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बारे में बात की और उनको इल्म से नवाजने के बारे में बताया। अब यहाँ अल्लाह ताला उन इनामात का जिक्र फरमा रहा है जो उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर किए। अच्छा जी, हमने अब ये जो बात याद रखनी है कि सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करें तो ये ताजीमन सजदा था। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम बाबाए कहते हैं ना बनी नो इंसान, हम सबके बाबा, तो उनकी इकराम किस वजह से, इल्म की वजह से, क्योंकि इबादत में तो फरिश्तों ने कहा कि हम बेहतर हैं, तस्बीह करने में हम बेहतर है। वैसे भी पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करती है, इबादत करती है। तो वो आदम अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए था, ना कि उनकी इबादत के तौर पर। तो हमने इस बात को याद रखना है कि ये इबादतन सजदा नहीं था, बल्कि ये एक ताजीमन सजदा था। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो फरिश्तों ने इताअत की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। लेकिन कोई एक ऐसा भी था जिसने इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया, अभी हम आगे देखते हैं। और इसमें हमने एक ये बात ये भी देखनी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे वालिद, उनका कितना बड़ा इकराम है। तसव्वुर करें कि क्या ये खूबसूरत मंजर होगा कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, और वो कितना खूबसूरत मंजर होगा कि सब तमाम के तमाम फरिश्ते सजदे में झुक गए। हुक्म था अल्लाह का, ये इबादत के तौर पर नहीं था, ये शिर्क किया नहीं था, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म था जिसकी तामील की, जिसकी फौरन तामील की, इताअत की फरिश्तों ने। अब ये जो इब्लीस था इसने क्यों मना कर दिया, इसको हम देखते हैं आयात के हिसाब से। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इकराम किया और फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया कि आपकी अजमत के लिए सजदा करें। इंसान को अल्लाह ताला ने मट्टी से बनाया, फरिश्ते किससे बने हैं, नूर से। अब ये जो शैतान था जिसके बारे में हमने पढ़ा कि हमने ये भी सुना है कि ये जिन्नों में से था, तो अगर इसको जिन्नों में से था तो इसको आग से बनाया। अब उसे ये था कि मैं मिट्टी से बने हुए इंसान से बेहतर हूँ। ये क्या था, उसका तकब्बुर था और हसद था कि मैं इबादत में इतना आगे हूँ, क्योंकि इब्लीस होने से पहले वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इंतहाई इबादत गुजार था। लेकिन ये जो हसद है, ये शैतानी सिफात जो थी उसके अंदर आ गई, उसकी वजह से वो रहमत से दूर कर दिया गया, मरदूद कर दिया गया। अल्लाह ताला की नाफरमानी कुफ्र करने और अपने आप पर जुल्म करने की तरफ ले जाती है। अब हमने ये देखना, ये सोचना है कि सिर्फ एक सजदे से इनकार ने इब्लीस को शैतान, यानी कि अगर वो अल्लाह ताला का एक मुकर्रब बंदा था तो उसे इब्लीस बना दिया, शैतान बना दिया, रहमत से दूर कर दिया, रजीम कर दिया। तो हमने अपना जायजा लेना है, हमने अपना एहतसाब करना है कि हम कितनी नमाजें, कितने सजदे छोड़ देते हैं। तो कोशिश करनी है, कोशिश भी इस तरह से करनी है कि इसको फर्ज समझना है, क्योंकि नमाज का सवाल तो हर हाल में है। और इसके साथ साथ एक बात बताई गई कि गुनाह की जगहों के करीब भी ना जाओ। इससे ये हम कहते हैं ना, सुनते हैं कि सोहबत का भी असर होता है। अगर आपके इर्द गिर्द 10 लोग हैं, या आप समझ लें कि आप 10वें हैं, 9 लोग हैं, उनकी सिफात ऐसी है बुराई वाली, तो फिर 10वें आप हो जाएंगे, क्योंकि सोहबत का बड़ा असर होता है। शुरू में ये कि चस्के के तौर पे अच्छा चले हम करके देख लेते हैं, हमने कौन सा आदत बनानी है, और आहिस्ता आहिस्ता बंदा उसी का आदी हो जाता है। तो गुनाह की जगहों के करीब भी जाने से मना कर दिया गया। कुरान कितना आसान है, अब हम इसको इस तरह से देखेंगे। ये जो हम गिनती तो इसी तरह से कर ही लेते हैं, बेहतर है कि हम आप लोगों से पूछते हैं। आप लोग माइक ऑन कीजिए और एक एक लफ्ज के बारे में मुझे बताते जाएं कि आपको इसकी समझ आ रही है या नहीं, ताकि हमें ये साथ साथ अंदाजा होता रहे।
جی السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम. हाँ जी, جی اب वाह से शुरू कर ترجمہ लेते हैं. ترجمہ नहीं, کریں. नहीं तर्जुमा नहीं करना. आप मुझे बस बताते जाए वाह का तर्जुमा आपको आता है. جی ہاں جی. इज, اس کا कुलना, کھلنا کا بھی, لی, ملائکہ کا بھی, لی ملائکہ کا بھی, ٹھیک ہو گیا. سسٹر اسجدو کا بہتر بھی. نہیں ہے کہ آپ بولتی جائے تو ہم جو ہے وہ ترجمہ بولتے جائیں گے. چلیں ایسے کر لیتے ہیں. واہ, اور اور इज, جب कुलना, جب ہاں کہا ہم نے. ہاں ہم نے کہا لی, لی. اب لی کو یہ ملک لیے لیے یا کو ٹھیک ہو گیا. ملائکہ. فرشتوں کو. سے ملائکہ فرشتہ اچھا جو ہم نے نہیں کرو پڑھا ان تم کو ہم سب. چھوڑ بھی سکتے ہیں, اسکپ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہمیں ویسے تو اردو سے ملتا جلتا ہمیں پتا چل رہا ہے, لیکن اس کو بھی ہم چھوڑتے ہیں. لی پھر سے وہی آ گیا. لیے آدم, یہ بھی ہم جانتے کہ اچھا جی. اب پاس سجدو کیا سجدہ کیا اللہ پس سجدہ کیا اللہ مگر اب ہم سوائے. یہاں پر ابا کو بھی چھوڑتے ہیں, وستکبرا کو بھی چھوڑتے ہیں, کانا. اور وہ ہو گیا, تھا اور اور تھے. وہ ہو گیا کافرین میں سے. من 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 سے اور کافرین. کافرین کفر کرنے والوں میں سے. وا کلنا ہم دیکھ چکے, اس کو چھوڑتے ہیں. انتا, آپ, تو یا آپ تم سنگل اوکے. سنگل ہے. زوج بھی ہم پڑھ چکے ہیں, زوج بھی ہم پڑھ چکے ہیں. زوجو کا تمہاری بیوی. ٹھیک ہو گیا. بیوی. جنہ بالکل پڑھا ہے. جنت خلا کو ہم جنتا. چھوڑتے ہیں. منہا, اس میں سے, اس سے, اس عورت سے. یعنی یہ اب مؤنث کا نہیں اس اشارہ میں آ گیا. سے. ٹھیک ہو گیا جی. عورت نہیں. ہی سنے ہیں, اس کو بھی چھوڑتے ہیں, ماں کو بھی چھوڑتے ہیں. کھانے آج پینے کی چیزیں. جی جی وہ کلا لیکن وہ کھانا مونس ہے میں نا, آ رہا تو ہے نا ہا منہا کی ان وجہ میں سے. سے یعنی کھانے کی چیزوں میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد فتکونا, ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ سمجھ لیتے ہیں. من سے من سے ظالمین, ظالموں میں سے. ظالموں میں سے. اچھا جی سسٹر نورین, آپ کی ویڈیو غالباً آن ہو گئی ہے, آپ اپنی ویڈیو بند کر دیجئے. جی چلیے جی, میں نے اس کو کر دیا پن, تاکہ اب آپ کی ویڈیو اگر اوپن ہوتی بھی ہے. اچھا جی, اب ہمیں پتا چلا کہ اب ہم زیادہ تر الفاظ کو الحمدللہ اس طرح سے کہ عربی کو عربی زبان میں ہی سمجھنے کے قابل ہیں. الحمدللہ. ایک مرتبہ آپ سب بھی کہیے الحمدللہ. ہاں جی. یہ تسبیحات کیا کریں. یہ جنت میں جو ہمارے باغ بننے ہیں ان کو ہم نے سجانا بھی تو ہے نا, ایک ایک پودا لگتا ہے, ایک ایک پیڑ ہم لگاتے جا رہے ہیں, تو ہم نے ان کو اسی طرح سے مزین کرنا ہے, یعنی کہ ان کی زینت کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے میں دو قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ کون کون سے الفاظ کے معنی ہمیں یاد ہونے چاہیے, اور ہمیں گرامر آنی چاہیے. گرامر کتنی آنی چاہیے, جتنی ہم نے سیکھی, اس سے زیادہ کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. جتنی ہم نے سیکھی ہے پڑھی ہمیں اتنی آنی چاہیے. الفاظ کے معنی ہم نے کیسے سیکھنے, اشارات اور فکروں کی مدد سے. اشارات اب یہ والے نہیں ہیں, اب اشارے وہ ہیں پوائنٹرز. گرامر کیسے ہم نے سیکھنی ہے, ٹی پی آئی کے ذریعے. اب یہ والے جو اشارے ہیں نا, یہ جو ٹی پی آئی والے, اس سے ہم گرامر سیکھتے ہیں. جیسے اب میں اگر کہتی ہوں ہوا, تو ہمیں اب ہم اشارہ نہ بھی کریں تو اب میرے ذہن میں خود ایسی آ جاتا ہے کہ میں نے ون فنگر سے اشارہ کیا سائڈ پہ, تو یہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے, وہ جو دور ہے, غائب ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ عربی بول چال جو ہم ڈائلاگز بناتے ہیں, تو یہ بڑی اچھی ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے, اور ہماری ووکیبلری بھی اس سے الحمدللہ بڑھ رہی ہے. اچھا جی, اب ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھتے ہیں, شرح بھی, اور ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے نئے الفاظ ہیں. ہم نے دیکھا شروع میں جب ہم نے قرآن مجید یہ جو کورس 2 کے مقاصد دیکھے تھے, اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر لائن میں تقریباً 3 نئے الفاظ ہوں گے. اب یہ کہ جہاں پر نیا لفظ آتا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس پورے فکرے کو, تاکہ فکرے فریزز کے ساتھ ہمیں یاد ہو جائے. جیسے ہم نے کہا تھا انشاءاللہ, پورا فریز ہوگا تو جلدی یاد آ جاتا ہے. اب ہم ان کی پریکٹس بھی اس طرح سے کر لیں گے. پہلے ہم کرتے ہیں تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو، بس انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے. اب ہم ورڈ بائی ورڈ بھی سے دیکھ لیتے ہیں. وا اور از اور ایزا ہم نے کہا از اور ایزا جب بھی آتے ہیں یہ ہمارے جو افعال ہوتے ہیں جیسے ماضی ہے تو اس کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماضی کا یہ معنی مضارع میں لے جاتے جب ایزا ہو. اس سے زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یا تو معنی وہی رہتا ہے یا پھر جو مستقبل والی بات ہوگی اس کا معنی ماضی میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے کلنا، پورا ٹیبل سے آیا، ہم اس کو کر چکے. لی اور الملائکہ ٹکڑے کریں تو 2 ٹکڑے بنیں گے. اچھا جی اب مجھے کوئی بتائے ملائکہ کا واحد ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ملک. 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 ٹھیک ہو گیا. ہم نے پھر اس کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ بھی کیا تھا، ملکہ، ملک، ملک اور ایک اور کیا تھا؟ مالک. مالک. ٹھیک ہو گیا. یہ سارے دیکھیں صرف کہیں پہ ایک الف زیادہ ہو گیا، زیر زیادہ ہو گئی، زبر زیادہ، اس سے یہ کیا ہوا ان تمام الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب اچھا جی اب یہ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ پہچانیے کہ یہ جو ہے سین جیم دال واو. ابھی ہم نے ٹیبل تو نہیں کیا لیکن یہ کہ مجھے یقین ہے کہ آپ انشاءاللہ ضرور اس کو سمجھ جائیں گے. اگر میں نے یہاں کوئی حرکت لگانی ہے تو کون سی لگانی چاہیے مجھے؟ اس میں پیش آئے گی. پیش آئے گی. اور آپ کو یہ کیوں لگا کہ یہاں پیش آنی چاہیے؟ تیسرے حرف کیونکہ تیسرے حرف پہ یہ پیش ہے. یہ ہمارا دوسرا اور یہ ہمارا جو تیسرا حرف تھا اس کے اوپر پیش تھی. اور اب یہ پیش کیا بتا رہی ہے یہ کہ یہ ٹیبل کس پہ جائے گا؟ امر پہ. امر پہ تو جائے گا، یہ جائے گا نصارہ پہ. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کو اگر جی جی. توڑ کے پڑھیں گے تو ہم کہیں گے اس جودو. ٹھیک ہو گیا. یہ جو یہ الف ہے نا یہ جو خود لگایا جاتا ہے یہ ملاتے وقت اس کو پھر گرا بھی دیا جاتا ہے، پھر اس کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں گے وا از قلنا للملائکتی پھر ہم کہیں گے اس جودو. اس جودو کی یہ جو واو اور الف ہے اس نے بتا دیا کہ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہم نے ایک الف جو ہے عارضی لگائی تھی پیش کے ساتھ تو یہ امر ہے. الحمدللہ. اسی طرح سے ہمیں اپنے کورس کو لے کے آگے چلنا ہے. اب ہے لی آدما. اس میں بھی لی کو الگ کر لیں گے، آدما کو الگ کر لیں گے. جیسے ہم نے کہا تھا للہ، اسے ہمیں پتا چلا کہ لی الگ ہے، آدما یعنی کہ آدم کے لیے. اب اردو کی مجبوری ہے کہ اردو میں کہیں گے سجدہ کرو آدم کے لیے تو وہ ہمیں صحیح پراپر اس کی فکرے کی بناوٹ اچھی نہیں لگے گی. سمجھ تو آئے گا لیکن یہ کہ اردو کی روانی میں پھر کے لیے کی بجائے کو زیادہ مناسب ہے. اب اس کے بعد اگلا ہے فسجدو. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہی ہمارا ٹیبل ہے سجدہ سجدہ اور اس کے بعد ہم کیا کہیں گے مضارع میں؟ یسجدو. یسجد. الحمدللہ. یہ ہمارا سجدہ اور یہ ہے یسجد. اسجد. ہاں اسجد اس کے آگے آ جائے گا وہ جو اسجدو کا. اب ہم فا کو الگ کرتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس رہ گیا ہے سجدو. اب یہ کون سا سیگا ایسے پہچانا جا رہا ہے؟ ہاں جی سجدہ سجدو. الحمدللہ الحمدللہ. اور ہم اس پر کہیں گے ثم الحمدللہ. یہ جو چیز ہے نا اس سے ہمیں بہت جلدی افعال کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ اب ہم پتہ چل گیا سجدہ سجدو، سجدتا سجدتو سجدتم سجدنا اور یا سجدت. ٹھیک ہو گیا جی. پھر یسجدو یسجدونا تسجدو اسجدو تسجدونا نسجدو اور ہیا تسجدو. اس کے بعد ہے اسجد اور اسجدو جو ہمارا یہاں پر یوز ہو گیا.
अब हमें ये भी समझ आना शुरू हो गई, कुलना, कुलना ये किसने किसको कहा, ये कौन कह रहा, और जब हमने कहा, ये हम कौन है, अल्लाह ताला। अल्लाह ताला, अल्लाह अल्लाह ताला, ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह ताला ने कहा, यानी कि ताजीमन कहा। ये हम शायद पहले भी बात कर चुके हों कि अल्लाह ताला के बारे में बहुत सी जगहों पे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी तरफ वाला सीगा वो कुलना यानी कि ना वाला सीगा, नहनु वाला यूज किया। और जब हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो आदम को, ठीक हो गया। इसके बाद है फा, तो बस फिर हमने 3 इसके माना पढ़े, तो सजदू, उन्होंने सजदा किया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमें पूरी पूरी समझ आ गई कि ये क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आगे है इल्ला, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि हम कहते हैं कोई अल्लाह नहीं सिवाय अल्लाह की, यानी कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के, ये उसी तरह से इल्ला है। इल्ला इबलीस, यानी कि बस उन्होंने सजदा किया सिवाय इबलीस के। अबा नया लफ्ज है, अबा का हम टेबल भी कर लेंगे, इसका माना है उसने इनकार किया, आबा उसने इनकार किया। किससे मिलता जुलता लग रहा है ये? हदा। बिल्कुल इसके जैसा ही, बस कोई नुक्तों का फर्क था। कौन सा टेबल था? अता, अता। अता, आता हाँ ठीक हो गया। ये देखने में अता जैसा है, तब्दीलियां क्या होगी वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, इसको आप अगर इतना सा देख लें, तकबरा, अगर इसकी जेरे जबरे ना पढ़े तो हम उर्दू में इसको तकब्बुर ही पढ़ेंगे, ठीक हो गया जी। वा और काना का पूरा टेबल हम कर चुके हैं। इसके बाद है वा मिन, अच्छा इसके बाद है मिन। मिन तो हमने जो शुरू में अपना शुरू किया था जब QC1, तब हमने इसको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में ही सीख लिया था कि वो यानी कि इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया, और वो हो गया, किसमें हो गया? काफिरों में से हो गया। तो यहाँ ठीक पर है, काना था में नहीं आएगा कि वो था काफू में से? उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जब ये था वाला तर्जुमा लाना होता है ना, तो हम उसको करते हैं माजी इस्तमरारी में ले जाते हैं ना। अब यहाँ पर आगे देखें, काफिरीन कौन सा सीखा? काफिरीन, काफिर, काफिरूना, काफिरीना, ये इसम फाइल है ना। अब अगर तो ये मुदारे यहाँ पर यूज हुआ था तो हम फिर काना के साथ, जैसे अब यहाँ पर यकफुरु यूज हुआ था, यकफुर, तो हम उसको बदल लेते माना को। अब ये जो माना है ये इस तरह से इज की वजह से भी चेंज हो जाते हैं ना, जो शुरू में एक इज आ गया है ना। अब ये बाकी सारी बातें अंडरस्टूड है कि जब हमने कहा माजी में, जब हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो आदम को, बस उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने क्या किया? उसने इनकार किया, उसने तकब्बुर किया, वो हो गया, यानी कि वो हमेशा के लिए है भी, हुआ भी है और रहेगा भी। किसमें से? इनकार करने वालों में से। चलिए जी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। अच्छा, ये हम पढ़ चुके हैं, पहले भी हमने देखा कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत की, तो गोया उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानकर अल्लाह की इबादत की, ना कि आदम अलैहिस्सलाम की। ताकि ये गलतफहमी मुसलमानों के तो जहन में मेरा नहीं ख्याल की आएगी, लेकिन ये कि अगर कोई नॉन मुस्लिम सुने तो हो सकता है कि उनके जहन में कोई ऐसी बात आ जाए कि शायद इबादत इससे मकसूद थी। तो इससे मकसद इबादत नहीं थी, ये ताजीम थी, ना कि आदम अलैहिस्सलाम की इबादत। ठीक हो गया जी। अब हमने ये देखना है कि इंसान का मुकाम क्या है इल्म की वजह। सबसे पहले तो ये भी हम देखें, इल्म सीखना है। और इल्म यानी कि जब हम कोशिश करेंगे, कायनात पर गौर करेंगे, अपनी इर्द गिर्द की चीजों पर गौर करेंगे, छोटी चीज से भी शुरू किया जाए, जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े मकासद की तरफ चले जाएं। हर चीज में हमें अल्लाह ताला की कुदरत नजर आएगी। और इसके साथ देखिए कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया, इसके बावजूद कितने एजाज और इकराम से नवाजा। तो क्या हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? क्या एक सजदा शुक्र हम पर भारी है? तो इस तरह के सवाल खुद अपने आप से हम पूछते रहे तो इंशाल्लाह नमाज की भी पाबंदी, मुझे वैसे यकीन तो है कि आप सब जरूर पाबंदी करते होंगे, लेकिन ये कि इसके लिए हमें साथ साथ हिदायत की और इबादतों में ज़ौक शौक की और अच्छी इबादतों की भी दुआएं करते रहना चाहिए। जैसे नमाज हम पढ़ते हैं तो नमाज की फौरन बाद की दुआ भी जो थी वो थी अल्लाहुम्मा इन्नी जिक्री का व शुक्री का वस्न इबादत, ये हमने की थी ना। इसका मतलब यही था कि मजीद बेहतर इबादत की हमें अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए।
قبول ہونے والی عبادت. شیطان نے انکار کر دیا اور تکبر کیا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا, اور پھر جب اسے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو یہ نہیں کہا کہ سجدہ کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا ہے, میں فرشتہ تو نہیں ہوں کہ میں کیوں سجدہ کروں, جب میں فرشتہ ہی نہیں, مجھے کہا ہی نہیں گیا تو میں نے تو سجدہ اس وجہ سے نہیں کیا. بلکہ اس نے کہا کہ میں اس یعنی کہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. یعنی یہ کہ اس نے تکبر اور سرکشی کا اظہار کیا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اور پھر وہ نافرمانوں میں سے ہو گیا. سجدہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے. کیسے؟ دیکھیں کہ انسان اپنا سب سے بہترین جو حصہ, اپنے پورے وجود کا, پیشانی, اور قیامت والے نہیں ہوتے کہ پیشانیاں ان کی چمک رہی ہوں گی یا ان کی پیشانیاں سیاہ ہوں گی, تو پیشانی اپنی اللہ تعالیٰ کے لیے انسان زمین پر رکھتا ہے, جہاں پر ہم چلتے پھرتے ہیں یا چوپائے پھرتے ہیں, یا اس کو ہم اس طرح سے لے لیں کہ راہ گزر, جو ہر چیز ہمارا وہ زمین جو ہے وہ لیول اس طرح کا. تو انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ رب العزت سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت کرتا ہے. یعنی کہ سجدہ عاجزی اور انکساری کی علامت ہے, اور سجدہ نہ کرنا تکبر اور سرکشی کی, جو کہ اللہ کو پسند نہیں. تو اب جب بھی ہم نماز پڑھیں, ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک سجدہ تھا جس سے انکار نے شیطان کو ابلیس بنا دیا, اور ہم اگر لاتعداد سجدے نہیں کرتے, کتنی نمازیں, بیمار ہوں تو ہماری سب سے پہلے نماز سستی آ جاتی ہے, شادیاں ہوں نمازوں میں سستی, کوئی اور کسی بھی طرح کا فنکشن ہو, ہاں فوتگیوں میں ہوتا ہے, سب باوضو ہوتے ہیں اکثر, تب میں نے دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہوتے نمازیں, لیکن صرف یہ کہ غموں میں اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرنا, خوشی کے موقع میں زیادہ ضرورت ہے, زیادہ کوشش کرنی ہے. اور بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ چلیں آپ کہتے ہیں کہ ہال تھا, کوئی ایسی مناسب جگہ نہیں تھی میں جہاں جا کے نماز پڑھتی, تو آپ اپنے لیے ان نمازوں کو جمع بھی کیا کریں. آپ گھر رہتے ہیں, گھر آتے سب سے پہلے نماز پڑھ لیں. یہ صرف بوقت ضرورت کے آپ کو موقع ہی نہیں ملا, کچھ ایسا ٹائم ہی نہیں تھا کہ آپ اس میں نماز کو ادا کر سکتے. تھوڑی تھوڑی سی چھوٹ یہ اسلام کی طرف سے ہوتی ہے, کیونکہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے, لیکن یہ کہ اولین وقت میں کوشش کرنی ہے نماز پڑھنے کی. سجدے کا یہ جب ہم اپنے ذہن میں لائیں کہ آدم علیہ السلام کا اکرام تھا, اعزاز تھا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, کہ اللہ تعالیٰ کی دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والی, عبادت کرنے والی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہماری نمازیں تو نہیں انشاءاللہ قضا ہونی چاہیے. اچھا جی, اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ حدیث پاک میں آیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب ابن آدم, کوئی بندہ کوئی بھی ہو, سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان تنہائی میں روتا ہے اور یہ کہتا ہے, ہائے میری بربادی, ابن آدم کو سجدہ کا حکم دیا گیا, اس نے سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے, مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا, میں نے سجدہ نہیں کیا تو میرے لیے جہنم کی آگ ہے. آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سسٹرز مجھے بتائیے, میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے جی. پہلے کٹی تھی, اب آنا شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آپ نے مجھے فوراً بتایا کرے, میں نے موبائل سے بھی آن کیا ہوا تاکہ پھر میں ادھر اپنا مائک آن کر لیا کروں. اچھا جی, ایک مرتبہ ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ, اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا, ہمیں پتا ہے عنہ انہا, کیونکہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے ایک چھوٹی سی محفل تھی, وہاں پہ میں گئی ہوں, تو یہ چگلی کے طور پہ نہیں ہے, صرف میں یہ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہمیں پتا ہو چیزوں کا تو ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے. تو انہوں نے اسی طرح سے نام لیا کسی صحابی کا اور کہا انہا. اب ٹوکنا تو ایسے اچھا بھی نہیں ہوتا کہ آپ پوری محفل میں, کہتے ہیں نا کسی کو اگر آپ محفل میں نصیحت کریں گے تو آپ نے اس کو بگاڑ دیا, تو اگر آپ کے سامنے بھی ایسا تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بتا دیا جائے, کیونکہ ہم نے اپنا خود پکا کر لینا کہ انہو جو ہے یہ مردوں کے لیے اور ہا کی ضمیر عورتوں کے لیے. اس بات کو یاد بھی رکھنا اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ بتانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو. سجدہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. کہتے ہیں نا کہ دعا مانگا کرو,
نہیں قبول ہوتی سجدہ کر لو، تاثیر بدل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب ہم سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نا تو وہ دعائیں بھی مقبول، اور یہ کہ اگر دنیا میں نہیں بھی ہمیں نظر آ رہا ان کا کوئی بھی قبول ہونے کا کوئی چانس نہیں نظر آ رہا، تو یہ دعائیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور اس سے ایک برائی کو مٹا دیتے ہیں۔ کس میں سے برائی کو مٹاتے ہیں بتائیں ذرا مجھے، یہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک نیکی اس میں لکھی جا رہی ہے؟ ہمارے نامہ اعمال میں سے وہ کون سی بک ہوگی کہ جس میں سے جو لکھا گیا بس لکھا گیا، اس میں ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، ہم اریز نہیں کر سکتے۔ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو مٹا سکتی ہیں؟ وہ استغفار ہے، وہ یہ سجدے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات ہے جس سے یہ کہ نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور اس کے لیے ایک درجہ بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بینیفٹ جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو خود بخود شوق پیدا ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں پتا چلے کہ فلاں 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 برانڈ پہ سیل لگی ہے تو ہم دوڑے جاتے ہیں فٹافٹ کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور لے لے۔ تو یہ جو سبقت ہے، یہ سبقت کا جذبہ بھی ہم نے اپنی عبادات میں لانا ہے۔ چلیے جو کون پڑھنا چاہے گا؟ علم، سکھا، کون سکھانا چاہے گا؟ میں پڑھوں گی۔ جی کمر جی نہیں پڑھیے، جی پڑھیے۔ اور اس جب کل نہ کہا ہم نے للملائکتی ملائکہ سے اس جدو سے انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس سے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ کافروں میں سے، جزاک اللہ خیر، الحمدللہ۔ اچھا جی، اب یہ جو نئے الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کو آپ اپنے ذخیرہ الفاظ میں، جو آپ کے پاس کوئی بھی ایک نوٹ پیڈ ہے یا آپ نے کوئی بک بنائی ہے یا اپنی بک کے پیچھے ان کو لکھ لیا کریں، ان کو وکیبلری کے طور پہ اس طرح سے یاد کر لیا کریں کہ یہ ذخیرہ الفاظ ہیں۔ آگے آگے جیسے ہم اس کا ٹیبل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم قرآن پاک میں سے جہاں جہاں ہمیں نظر آئے نا یہ الفاظ، تو ہمیں اور بھی مزید اس میں سے سمجھنے کا پتہ چلے گا الحمدللہ۔ اب اگلی آیت مبارکہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقلنا یا آدم انت وزوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم دونوں چاہو، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ اچھا جی، اب اس میں سے ہم پہلے کوشش کریں خود بخود ترجمہ کرنے کی۔ جی سسٹر۔ چلیے جی، واو، اور قلنا، کہا ہم نے، ہم نے یا کہا ہم نے آدم، کہا اے آدم اے آدم اچھا جی اس کو بھی چھوڑ دیتے، انتا، تم اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ اور سکون ہم نے آئے گا نا، کیا یہ تھا؟ سکونت اختیار کرنا، یہ بھی ہوتا ہاں ہے نا ٹھیک اردو ہو میں۔ گیا یہ جی، بھی الحمد اردو للہ ہم میں نے ہی ہے، کیا بھی، مجھے اسکون۔ یاد آ گیا ہم نے بھی کیا تو تھا۔ اچھا یہاں پر آپ کو کون سی ایک چیز نئی نظر آئی ہے؟ راغدن، راغدن، وہ ایک لفظ ہے نیا، میں آپ کی توجہ ایک اور طرف دلانا چاہ رہی ہوں۔ کھلا بھی لگ رہا ہے سسٹر۔ یہ جو سعاد کی جو سعاد آئی ہے، وقلا وقلا ہے کھلا، کلو من غدن ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم نے یہ جی دیکھنا ہے کہ جہاں جہاں پر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، ترجمہ ہوا ہے تم دونوں، تم دونوں، تم دونوں، اور یہ تم دونوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ہم نے کہا تھا اکلا یہ تسنیہ۔ یأکلو، کل،
ठीक हो गया, हमने पढ़ा था कुल, इसका क्या माना बनता है कुल का? खाओ। हाँ, और ये कितने लोगों के बारे में, किसको, कितने लोगों को कहा जा रहा है? एक कुल एक एक के लिए, को। कुल ज्यादा के लिए। ज्यादा के और लिए। अब सबके ये लिए। इसके दरमियान में आ जाएगा, 2 के दो लिए। दो लोगों। कुलू, कुला, उसके बाद कुलू, ठीक हो गया जी। एक को कहना हो तो कुल खा, कुला तुम दोनों खाओ, कुलू तुम सब खाओ, तुम सब खाओ। ठीक हो गया जी। अब जी। अब इसी तरह से तुमा, शिअतुमा, हमने कहा था शिअता शिअतु, और इसके बाद हमने कहा था शिअतुम, चाहना। ठीक है ना। अब हम शिअता वाला ही लेके जाएंगे, शिअता शिअतुमा शिअतुम, ठीक हो गया। शिअता तुमने चाहा, तुम सबने चाहा, जबकि शिअतुमा होगा तुम दोनों ने चाहा, ठीक हो गया। इसी तरह से तकराबा, ये भी इसी तरह से एक फेल है, यानी कि अब हम कह सकते हैं तकराबा, तकरब, तकराबू और तकराबा, ठीक हो गया। तब ला हमारा तकरब। जानना पहचानना है। ये करीब से है ना, उर्दू में भी तो करीब कहते हाँ हैं। जी, हाँ जी, ये फेल थोड़ा सा चेंज है, इंशाल्लाह ये फेल हम काराबा, काराबा नहीं, ये काराबा नहीं होगा। अच्छा जी, तकराबा, हाँ जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, पहुंच गए आप। अच्छा जी, तकूना, अब तकूना भी कैसे है, तकूनु, तकूना और तकूनु, ठीक हो गया। जब हम दो के लिए सीगा यूज करेंगे तो एक अलिफ साथ लगा दिया जाएगा, जैसे हमने अपने माजी के सीगे में किया था फ़अला, और हमने एंड पे कहा था फ़अलत, यानी कि यहाँ तक ये पूरा का पूरा फ़अला आ गया, एक ता लगाकर हमने जज़म दे दी। अब ये जो फ़अला है, फ़अला, यहाँ तक पूरा, और इसके आगे एक अलिफ लगा दी जाती है, ठीक हो गया। इसको और कोई इसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसको बनाना मुश्किल नहीं है, एक अलिफ लगाते हैं तो ये दो का सीगा हो जाता है। और ये अरबी जुबान में है, ये और जुबानों में नहीं होता कि वाहिद, फिर आता है तस्निया, उसके बाद आती है जमा। वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए, और ये दो तीन चार, नहीं दो तो नहीं आएगा, तीन चार पांच, जितने भी लोग हो, यानी कि दो से ज्यादा लोगों के लिए, ठीक हो गया। अब इसको हम आगे भी देख लेते हैं इंशाअल्लाह। और हमने कहा ए आदम वकुल ना, काला काम टेबल कर चुके, अपनी तरफ का इशारा ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए आदम उस्कुन। अच्छा जी, उस्कुन से कोई मिलता जुलता उर्दू का वर्ड ढूंढे, कोई सा भी जी। हो, सुकून, सुकूनत, मस्कनत। मस्कन, ठीक हो गया जी। सुकून, सुकूनत, मस्कन, ये सारी क्या चीजें हैं, रहने की। सुकून से रहने की जगह क्या है, सुकूनत, जहाँ पे रिहाइश होती है, घर। मस्कन भी इसी को कहते हैं ना, आपका मस्कन, हमारा मस्कन, ये भी जो जगह जहाँ पर रहा जाता है। तो उसकुन रहो, ये यहाँ पर आ गया फेले अमर, उसकुन। और इसमें एक ये जो उसकुन में अब सिर्फ ये आदम को कहा जा रहा है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये नहीं ढूंढने लग जाना कि ये दोनों को क्यों नहीं कहा, इसमें दोनों अंडरस्टूड ही है। वो आगे आ आगे रहा, बीवी आगे भी है ना, आपकी। आगे आगे बस औजक और तेरी बीवी। हाँ जी, अब इन बातों का हमने ख्याल रखना है। तुम रहो और तुम्हारी बीवी, ठीक हो गया। कहाँ रहो, जन्नत में। जन्नत की जमा जन्नत, जन्नत, जन्नतान, जौज की जमा, जन्नतान, अज़वाज, अच्छा जन्नत। जन्नात, ठीक हो गया। अभी जन्नतान पे नहीं हम जाएंगे। अच्छा जी, जौज की जमा अज़वाज, और इसकी मुअन्नस क्या होगी, ज़ौजा। ज़ौजा, ज़ौजतुन। ठीक हो गया जी। कुला को हम देख चुके, ठीक हो गया। कुल खा, कुला तुम दोनों खाओ, मिनहा उसमें से रौगदन, रौगदन को भी आप ऐसे याद कर लें कि आपने एक नया लफ्ज सीखा है, उसको याद रखना है।
हैसा शिअतुमा, हैसा कहते हैं जहां को, ठीक है, जहां से चाहो। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत में हर तरफ आजादी दे दी कि जहां उनका दिल चाहे वो तुम दोनों वहां से खाओ। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ये आसानी की। इंसान क्या करता है, खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर लेता है। बा और ला नहीं, तकराबा, करीब हो जाओ, ये करीब जाना, और ना करीब जाओ, ये भी हुक्म है। हाजी ही शजरा, हाजी ही, ठीक है। अब हाजी से हमें पता चल गया, शजरा की तारे में बताया कि ये मुअन्नस का सीगा है और मुअन्नस इसके लिए यूज हो गई, हाजी ही शजरा, इस तरफ के करीब। ला ला तकरब, हम इसको देख चुके हैं, तकरब को दोबारा देखें। अच्छा जी, ला तकरब मत जा, और ला तकरबा मत जाओ। फतकूनु और फतकूना, इस पे भी बात हो गई। अब ये नहीं हमने करना कि अभी से हम सारे टेबल के ये बनाने शुरू कर दें। प्रैक्टिस के लिए मैं इंशाल्लाह 2 या 4 इस तरह के टेबल दे दूंगी कि जिसमें से आप इनको बना लें। ज्यादा सारे की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 का सीगा इस्तेमाल तो हुआ है, थोड़ा इस्तेमाल हुआ है, और इसी तरह जैसे मुअन्नस है वो कम इस्तेमाल हुआ है। तो जो कम इस्तेमाल हुआ है हम अपनी एनर्जी इस पे कम ही यूज करेंगे, हम अपने आप उस पे खपाएंगे नहीं कि अब इसका भी बनाएं उसका भी बनाएं। मिन से ज़ालिमीन, ज़ालिमीन भी इसी तरह से ज़ालिमीन, ठीक हो गया जी। ज़ालिम, ज़ालिमूना, ज़ालिमीना। अल्लाह ताला ने हमारे वालिद आदम और हव्वा अलैहिमा, अच्छा जी यहाँ पर भी आ गया। अभी हमने बात की थी, अगर हम कहेंगे मुअन्नस के बारे में तो क्या कहेंगे, मुज़क्कर के बारे में होगा तो क्या कहेंगे। अब हम यहाँ पर इसको देख ही लेते हैं, ये जो खास करके बताया गया, ये 2 के लिए अलैहुमा, 2 के लिए यूज हो गया। अगर हम सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बात करें तो अलैहि, अम्मा हव्वा, हव्वा के साथ हम क्या कहेंगे, अलैहा, अलैहा। और अब ये दोनों हैं, दोनों के लिए क्या यूज हो गया, अलैहिमा, अलैहुमा, ठीक हो गया। अब हमने हुमा। इसको इस तरह से भी याद रखना। वो ये एजाज अता किया कि उन्हें जन्नत में रखा और उनके आराम की सारी सहूलियात उन्हें दी। मैं एक जगह पे आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने इंसान को सारी मखलूकात में से सबसे नाजुक भी बनाया है। अब आप देखें, इंसान को सोने के लिए जरूरत पड़ती है, ये बिस्तर हो, नरम गद्दे हो, ऊपर ओढ़ने के लिए भी चीज चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरह से जब इंसान खाता है तो उसे पका के खाने की तलब है ना, हम रॉ फॉर्म में तो नहीं चीजें खाते। तो अल्लाह ताला ने इंसान को नाजुक भी बनाया, अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बहुत आसानियां भी पैदा फरमाई हैं। हमने क्या करना है, हमने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करनी है, इताअत करनी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह ताला की हर वो बात को मानना, अमल करना जिसपे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया करने का, और हर उस चीज से रुकना है जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रुकने का हुक्म दिया है। और एक और भी चीज, इसमें एक शेर भी बड़ा होता था ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, कि सिर्फ इबादत पे नहीं बात चलती है, एक दूसरे की तकलीफों को भी समझना है, और ये भी खास है इंसानों के लिए। अच्छा जी, इसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम और तमाम इंसानों के लिए ये इशारा था कि उनका असल ठिकाना जन्नत है, इसीलिए शैतान की पैरवी करके अपने उस ठिकाने को जाया मत कर दो। ये हमारा कयामत पर, यौम जज़ा पर, पूरा मुकम्मल यौमुद्दीन पर पूरा 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 ईमान और यकीन है। और हमें पता है कि कयामत आएगी, और कयामत के बाद की जो जिंदगी है वो हमेशा रहने वाली है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दुनिया में रहकर अमल करना है। दरख्त के करीब ना जाओ, यानी खाना तो दूर की बात है, उसके पास जाने से भी मना कर दिया। पास जाने से क्या होता है, वो फिर एक दिल में तलब हो जाती है कि इसको देखें, पास से देख लें, थोड़ा सा खा के देख लें, या जैसे अब आप नेट वगैरह का जहन में ले आए चीजों को, इस तरह से आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज आगे नहीं थी, मैंने देखना तो नहीं, अच्छा थोड़ा सा देख लेती क्या है इसमें। कोशिश करें अवॉइड ही करें, ना उसकी तरफ जाएं, कि गुनाह की चीजों के करीब भी मत जाएं, खाना तो बड़ी दूर की बात है। और यहाँ पर ये भी बात एक जहन में आती है कि ये जो गंदुम या इस तरह की कोई बातें मशहूर हुई हुई है, ये इनमें भी कोई सदाकत नहीं है। लिखा हुआ है हाजा शजरा, अब इसके आगे किसी खास दरख्त का नाम नहीं बताया गया। तो हमने खुद कोशिश करनी है कि अब हमने पढ़ लिया, इसको समझ लिया,
تو اب آگے ہم نے اگر پہلے سے کچھ بتا رہے تھے لوگوں کو تو اس سے ہم نے رکنا ہے. اچھا جی, جنت میں صرف ایک ہی درخت تھا جسے روکا گیا. آج ہمارے لیے میڈیا, انٹرنیٹ, ٹی وی, میگزین, گناہوں کا ماحول وغیرہ بہت سے ایسے درخت ہیں جن کے قریب جانے سے روکا گیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد فرمائے, آمین. اور اپنے آپ کو کبھی بھی اس طرح سے قابل بھروسہ نہیں سمجھنا کہ میں تو خود برائیوں سے بچ جاؤں گی, مجھے شیطان نے کیا کہنا, میں تو یہ پڑھتی ہوں یہ پڑھتی ہوں. جو پہلی عادت ہم نے سیکھی ہے نا QC1 میں, وہ یاد رکھنی ہے, تعوذ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. علم پڑھوں باجی؟ جی پڑھیے. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب کہا ہم نے, یا آدم علیہ السلام سے. آپ اگلی آیت مبارکہ پڑھیے. اس سے اگلی, وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ, اور ہم نے کہا اے آدم علیہ السلام, اسکن رہو تم, اسکن رہو, انتا تم. باجی اسکرین غائب ہو گئی ہے. دین غائب ہو گئی ہے. اور تمہاری بیوی, الجنتا جنت میں, وکلا اور کھاؤ تم دونوں, منہا اس میں سے, رغدن جتنا چاہو, جی بھر کے یا بکثرت, بھائی سو جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو, ولا اور نہ تقربا تم دونوں جاؤ قریب, حاضی اس الشجرۃ درخت کے, فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے, من الظالمین ظالموں میں سے. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر سسٹر. اللہ تعالیٰ آپ کے سیکھنے سکھانے میں برکات نصیب فرمائے. ترجمہ ہم نے دیکھ لیا, ایک ایک آمین. لفظ کا بھی دیکھ لیا, اور اسی طرح سے ہم نے ان کا ڈرامہ ترجمہ بھی دیکھ لیا. اسباق کو ایک دفعہ ہم پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اکرام کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا آدم علیہ السلام کو. اور تکبر اور حسد شیطانی صفات ہیں, اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر کرنے اور اپنے آپ پر ظلم کرنے کی طرف لے جاتی ہے. گناہ کی جگہوں کے قریب بھی مت جاؤ. اب اس کو دیکھتے ہوئے, آج کے لیسن کو پڑھتے ہوئے ہماری دعا کیا ہونی چاہیے کہ اے اللہ, جنت کو میری آخری منزل بنا دے, مجھے ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پلان کیا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گی. تبلیغ بھی کرنی ہے, اپنا احتساب بھی کرنا ہے, اور یہ سب کچھ کیسے کرنا ہے, گہرے تصور احساس کے ساتھ. کیسے اپنے ذہن میں اس ساری چیز کو, جتنا ہم نے پڑھ لیا اس کو اپنے ذہن میں لائیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو سجدہ, نماز, توبہ, یہ ساری چیزوں کو انسانوں کے لیے آسانی کے لیے بنا دیا. اچھا جی, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے اس میں ہیں الفاظ. زوج, ازواج, جنت, جنات, شجرہ, اشجار. اب ہم نے شجرات نہیں بنانا, ٹھیک ہو گیا. شجر, اشجار, شجرہ, اشجار, کہیں کہیں شجر بھی یوز ہوا ہے. تو شجرہ جو ہے اس کی بھی ہم نے جمع اشجار کی بنانی ہے. اچھا جی, اب ہے سجدہ. یہ ہمارا پہلا ٹیبل ہے جو صحت مند افعال میں سے ہے. سجدہ, یسجدو, اسجد, ساجد, مسجود اور سجود, ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح سے ساکنا, یسکنو, اسکن, ساکن, ڈیش, سکن, قریبا, یقربو, اقرب, قریب, مقروب اور قرب. اب اس کا ہم نے قریب نہیں بنانا, ٹھیک ہے, جو یوز نہیں ہوتا وہ بناتے بھی نہیں ہے. ظلم, یظلم, اظلم, ظالم, مظلوم اور ظلم. کہیں کہیں تھوڑے تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں اسم فائل بھی, جیسے مصدر چینج ہوتے ہیں نا, تھوڑے تھوڑے سے اسم الفائل بھی تھوڑے تھوڑے چینج ہو رہے ہیں. جیسے ہم نے پہلا ہی اپنا جو جب ٹیبل کیا تھا دائن وغیرہ, تو اس میں ہمیں پتا چل گیا تھا کہ دائی, انی, اس طرح سے کچھ نہیں بنایا بلکہ دائن سیدھا سیدھا ہی بنا دیا. تو قریب کی بجائے قریب, کیونکہ قریب ہی قرآن مجید میں یوز ہوا ہے. اچھا جی, آبا, آبا اب یاتی تھا تو اب یہ یاتی نہیں ہے. اس طرح کا ایک ٹیبل ہے, آپ لوگوں کی بک میں ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے پاس نئی بکس ہیں, تو ان میں یقیناً یہ سا کا پورا ٹیبل بنا ہوا ہوگا. اچھا جی, یہ اچھا جی,
ये है आबा या अबा, जैसे आप समझ लें कि जैसे फा पे आते हैं ना, उसी तरह से हैं। या अबा, अब इसको या भी नहीं करना, आबा या बा ईबा। अब ये जो ईबा था ना, इसकी वजह से मेरे ख्याल है ईता बन गया अता वाले टेबल में। तो आप सब उसको करेक्ट कर लीजिए, मैंने इसको वैसे डाल भी दिया था। हमारा जो एडमिन ग्रुप है उसमें मैंने खास इसी वजह से इस टेबल को डाला था कि उसको इती करना, उसको ईती नहीं करना। उसमें आपने या के भी जो जज़म है ना, ये उसके लिए हमजा के लिए है, ये या के लिए नहीं है। इधर मैं लिख भी देती हूँ एक मरतबा, इसको आपने चेंज करना। अगर आपने या लिखा, मेरा ख्याल है कि वो जो मैंने आपके साथ एक शेयर की थी स्लाइड, उसमें शायद ईटी लिखा हुआ है, तो आपने अपने उस टेबल में उसको इस तरह से कर लेना है। ठीक हो गया जी। ये ईबा है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसका ये भी बदला है ना, जो हमारा मुदारे भी बदला है, इस वजह से थोड़े थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। इसको हम थोड़ा सा और भी देखते हैं, अभी हम पूरा कर लें टेबल, फिर मैं आपको इसकी एक और भी मजेदार चीज बताती हूँ। आबा, याबा, ईबा, आबिन, मबीजुन और ईबाउन। अकला, यकुलु, कुल, आकिलुन, मकुलुन, अकलुन। शाआ, यशाउ, शाइन, मशीउन और मशीयतुन। काला और काना, ये दोनों आपको बार 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 नजर आएंगे, जैसे अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि कुलना काना फतकूना, ये आ ही जाते हैं। तो इसको हम छोड़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रही थी जो चीज, वो है हमने बनाया था अता के टेबल में। अब बताते जाएं मुझे। अब अबा से क्या बनाएंगे हम इसका नेक्स्ट वाला? अबू, अबऊ, और फिर अबैता, अबैता। अबैतु, अबैतुम, अबैना। ठीक हो गया जी। और आबत, ठीक हो गया आतत की तरह। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर जब हम लिखेंगे ना या भी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी खड़ी जबर है। अब हमने इसको या ती की तरह या तूना नहीं करना, अब हम करेंगे या बाऊना। तो क्या जी, क्योंकि हमारे पास ये जो खड़ी जबर है ना, ये कह रही है कि मेरे मुदारे के जो सारे सीखे हैं ना, वो भी जबर वाले होने चाहिए। अब आपने इसके ऊपर ये बात याद रख लेनी है कि जब आपके कमजोर वाला जो या होता है ना, जब इसके ऊपर खड़ी जबर आते हैं तो इसके जो जमा के सीगे बनते जाते हैं नीचे तक, वो फिर अपने जो बाकी के सीगे उन पे जबर ही मांगते हैं। ठीक हो गया? जैसे हम कहेंगे यबा, यबूना, तबा, अबा, तबूना, नबा और या तबा। ठीक हो गया जी। ये पूरा टेबल आप बना के देख लीजिएगा, ताकि इसकी आपकी रवानी भी हो जाए। इस तरह के कई टेबल आते जाते रहते हैं, ये हम बहुत सारे टेबल इस तरह के पढ़ेंगे, फिर आपकी मजीद इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। कंफ्यूजन की सूरत में हम दोबारा भी इसको कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा कुरान पार्ट वाला कंप्लीट हुआ। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा। सिस्टर मुझे थोड़ा सा ना वो शेता, शेतुमा में क्लियर नहीं हुआ अच्छी तरह से। अच्छा, जिसको भी हम क्लियर कर लेते हैं इंशाल्लाह। अभी हम अपनी स्लाइड पे इसको शेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, वो हमारा टेबल शाह वाला टेबल, वही कह रहे हैं आप? जी जी। ये जो हमारा अभी टेबल था पढ़ा ना शाह। अभी जो हमने पढ़ा ना शेतुमा, के खाओ तुम दोनों, चाहो तुम दोनों, अभी तो उसको कर उसमें लेते मुझे ऐसे फील होता है जैसे हम ता कहते हैं कि चाहा तूने, तू चाहा मैंने, तो ये तुम जो है चाहा हम सब ने, उन हैं। सब अभी ने। मैं इसको तरतीब से लिखती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तरतीब से लिख लेती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ये है जी, हम कहते हैं हिता,
शिअतु, शिअतुम। इसी तरह से है ना। अब हम तुम पे भी तो देखिए पेश ही लगा रहे हैं ना, लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि ये वाला तू था तो हमने इसकी वजह से तू कर दिया इसे। अब हमने दो चीजों को आपस में गड़बड़ नहीं करना। शिअतु जो है ना, शिअतु, इसका कोई दो वाला सिगा होता भी नहीं है। जब हम आगे आगे जाएंगे इंशाल्लाह हम अपनी टेबलों को इस तरह से, टेबलों को मैंने इंग्लिश को भी उर्दू में जमा बना दिया। अच्छा जी, तब हम ऐसा करेंगे, जैसे हम कहेंगे शाआ, शाऊ, ये वाला बीच में आना चाहिए, रुकिए जरा इसको दोबारा। शाऊ। अच्छा जी, इसके बाद हम करेंगे शिता, याऊ। इसमें हम एक या नहीं डालेंगे, इसकी अभी वैसे जरूरत नहीं है। इसके बाद ये जो तीन हो जाएंगे ना हमारे सीगे पूरे, फिर हम करेंगे शिअता वाली। शिअता, शिअतुमा और शिअतुम। इसको मजीद भी आसान करती हूँ, फिर आपको और भी समझ आएगी। हम कहते हैं अंता, अंतुमा, अंतुम। बस ये वाली जो पेश है इसको याद रख ले। अंतुम, इसी को अलिफ लगा देते हैं, अंतुमा। शिअतुम है, इसी को हम अलिफ लगा देते हैं, शिअतुमा बन जाता है। ठीक है। अब शिअतु जो शिअतु वाला, इसमें उसके अंदर फिर गड़बड़ होना भी नहीं है। जो सिस्टर पूछ रही थी उनको समझ आई? जी सिस्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह मैम खैर। ये जो शाऊ और उसके बाद तीसरा लफ्ज आपने क्या लिखा है इसमें एक जिसके या आगे? का इजाफा किया जाता है या फिर एक वाव का इजाफा किया जाता है। ये मैं आपको इंशाल्लाह इसका खुद नहीं, ये बेहतरीन जवाब। शाऊ है कि शियाऊ है? हाँ जी, इसमें दो चीजों का इजाफा किया जाता है। और अभी ये मैं बोलेंगे आपको, कैसे, बोलेंगे कैसे आप? हाँ मैं आपको वही बता रही हूँ। ये इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में इसको टेबल को सर्च करके इसका, या अपने टीचर से पूछ के फिर मैं आपको इसका बेहतरीन जो आंसर होगा वो बताऊंगी। ये दो तरह से तब्दीलियां की जाती कमजोर में, या तो एक या का इजाफा किया जाता है या एक वाव का इजाफा किया जाता है। तो मैं ये उनसे पूछ लूंगी कि इसमें यहाँ पर या आनी चाहिए या वाव आनी चाहिए। ठीक हो गया जी। इसको आपने जब याद रखना है ना, अंतुमा या शिअतुमा, उसके लिए आप ऐसे ही कर लिया करें, अंतुम, और इसका ये जो है मीम के साथ अलिफ लगा लें, और इसका बाकी वाला हिस्सा रेज कर लें। ये ज्यादा ही रेज हो गया, सॉरी। अंतुमा। और इसका एक और भी तो हमने किया था, किसी को याद हो? QC1 में भी हमने एक दो वाला सीखा किया था। हुमा हमने किया था, वो जो दुआ थी, रकू नहीं, ये क्या कहते हैं उसको, हाँ, मिल असमावाती व मिल मिल अल समावात अर्दी व मिल मा वमिल बैनहुमा। बैनहुमा। अब ये जो हुम है, आप देखें इस हुम को ही अलिफ लगा दिया, ये कट कर दिया बीच में से, हुम से हुमा बन गया। अब हुआ को तो नहीं कुछ किया हमने, हुमा को, हुम को हुमा में चेंज किया है। ठीक हो गया? इस तरह से याद रखना जरा आसान हो जाएगा। ये जो तुम वाला है, ठीक है। और ये हम राइट हैंड से इशारा कर रहे हैं। अभी आपने इसको मुअन्नस वाले में गड़बड़ भी नहीं करना। ठीक हो गया? इसको मुअन्नस वाले की अभी हमें जरूरत ही नहीं है। ये थोड़ी छोटी सी हम एक प्रैक्टिस करेंगे, ये दो दो वाले जो है ना, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत हम प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि ये हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक हो गया जी? आज हमारा ये जो ग्रामर है इसमें हम करेंगे नया टेबल और रोदिया और नासिया।
अच्छा जी, रदिया, नसिया, खशिया और लाकिया। और रजिया कौन उर्दू का कोई लफ्ज इसमें आपको समझ आ रहा हो? कोई जी राजी होना, राजी होना। राजी अन होना, रदू अन, रजी अल्लाह और रदू दोनों। यानी कि हमें समझ आ गई कि अभी इसमें कुछ राजी होने वाली बात थी। नासिया, भुलाना, भूल हाँ जाना। वो तो उसका तर्जुमा हो गया ना, कि इंसान से भी मिलता जुलता है ना। सियान एक बीमारी भी होती है, नसियान, भूलना। हाँ ठीक हो गया जी। और खशिया, खशियत इलाही। हाँ जी, ये भी उर्दू में यूज होता है। हाँ जी, मैं उर्दू वाले ही अभी पूछ रही, अभी हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। और लाकिया जो है ना, लाकिया ये हमने थोड़ा सा पढ़ा भी है शुरू में। मुलाकात को कहते हैं ना, मुलाकात, मुलाकात। वो जब मिलते हैं अपने शैतानों से, हमने हमने शुरू में पढ़ा था, जो हमारे जब हमारा था काफिरीन और मुनाफिकीन वाली। अब हम देख भी लेंगे इसको कि ये पूरा पूरा टेबल कैसे बनेगा। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। अब हम समझते हैं इन टेबल के बारे में मजीद। अच्छा जी, ये हम हमेशा स्लाइड ये वाली जरूर देखते हैं कि कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, फतहा नफरा, वरना मार पड़ेगी, इसीलिए सुन लो, द्वाराबा, सामिया। और हमने कहा कि QC2 वाले भी हमने याद रखने हैं कि इनका बहुत ज्यादा हमें खास तौर पर QC3 में फायदा होने वाला है फ्रेजेस याद करने का। अल्लाह ताला ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, वाला ज्यादा, इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। जन्ना, गला, एक और चीज आपको काम की बताती हूँ, जब हमने जन्ना अल्लाह ताला के लिए यूज करना है ना, ये लफ्ज जन्ना, तो उसमें यकीन होगा, उसमें गुमान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ हम गुमान वाली बात नहीं रखते। जब हम अल्लाह ताला से किसी चीज का गुमान रखते हैं तो उसके अंदर एक यकीन पाया जाता है। इंसानों के लिए वो तो गुमान रखा जा सकता है, अच्छा गुमान, बुरा गुमान, ठीक है, लेकिन जब हम अल्लाह ताला के लिए गुमान रखेंगे तो उसमें यकीन वाला माना पाया जाएगा। चलिए जी, ये इनके जो सब बाब हैं ये आपने याद रखने हैं, और ये भी याद रखना है कि पहला जो टेबल होगा वही सब बाब बनेगा। रदिया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, इसका तर्जुमा कर सकते हैं? कौन कोशिश करेगा? अल्लाह जी हुआ, अल्लाह उनसे राजी हो गया और से वो अल्लाह से राजी हो गए। स्क्रीन बड़ी क्यों हो गई है? रादिया, मैं इसको ठीक राजी कर हुआ रही हूँ। अल्लाह उनसे और वो अल्लाह से राजी। चलिए मैं इसको दोबारा शेयर करती हूँ। ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। रजी अल्लाहु, यहाँ हमें क्या बात पता चली, अल्लाह के ऊपर पेश ने क्या बता दिया कि यकीनन ये अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला की बात है ना, कि अल्लाह राजी हुआ है। यहाँ पर वो राजी हुआ, अल्लाह नहीं, अल्लाह राजी हुआ उनसे, और वो राजी हुए अल्लाह से। अनहु, उससे। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ कमजोर हर्फ हमारा एंड पे है। इस तरह के हमने और भी टेबल पढ़े जिनमें कमजोर हर्फ एंड पे आता है, वो कौन कौन से हैं? हदा, हदा, दआ, हदा, एक मिनट, मैं स्क्रीन को ठीक करूँ फिर मैं मशा, अच्छा जी, हदा और इसमें रदिया में कोई फर्क नजर आ रहा है? इस्ताज, इसमें जेर आ रही है ना रादिया में, हदा में नहीं है। रादिया, एक और भी चेंज है। खड़ा जबर और एंड पे, एंड वाला या जो है वो स्क्रीन आ उस गई? पे कोई जेर जबर नहीं। जी आ गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं पता क्या पूछना चाह रही थी आपसे, कि जब हमने हदा का टेबल किया था तो उसमें ये जो या थी ये खाली थी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसके ऊपर एक जबर है। अब ये जो जबर है ना, इससे तब्दीली आती, तब्दीली क्या आएगी वो हम देखते टेबल में। जब हमने अपना हदा का टेबल बनाया था तो हमने कहा था कि जब
खड़ी जबर वाले आ जाते हैं ना, जैसे अब हदा है, हदा, तो हमने इसका क्या बनाया था, हदऊ, ये हदू बनाया था, बताएं जरा, हदऊ, हदऊ। लेकिन अब ये जो इसके ऊपर जबर आई है ना, जबर, इसने बताया है कि अब हम पेश के साथ बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा फर्क है हदा वाले टेबल में और इसमें, यानी कि इसमें ये जो हमारा या है, इसकी एक अपनी हरकत है जो फतहा है, जबर है, और ये कह रही है कि अब जो मेरी जमा बनेगी वो पेश के साथ बनेगी। अब हमने हदा और रादिया, खाशिया, इन टेबलों में ये वाला फर्क करना है। ठीक, इंशाल्लाह समझ आ गई। समझ आ पीछे गई? सारी हमारी रद्दी गलती कहा भी था बारिश से दोबारा दोबारा पूछिए, क्या कहा आपने? दे गई थी, कितने की बिकी, कितने की बिकी, ऊपर अच्छा, से ये मेरे मिलेगी। साथ आपस में आप लोग बातें कर रहे हैं, मुझसे नहीं पूछ रहे, ठीक हो गया जी। रदिया वो राजी हुआ, रदू वो सब राजी हुए, रदीता आप राजी हुए, रदी तू मैं राजी हुआ, रदी तुम आप सब राजी हुए, रदीना हम सब राजी हुए। अच्छा जी, ये हमारी जो फेल माजी की किरदार ये पूरी हुई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जैसे सेम हम पहले करते हैं। हल रदिया, नअम रदिया, नाम रादिया। अच्छा जी, इसी तरह से हल रदू, नअम नअम रदू, रदू, हल रदीता, नाम नअम रदईतु, हल रदीतुम, नअम नअम रदईना, रदीना, रदीना। रदीना नहीं कहना, जबर नहीं लगानी, रदीना। रदी रदीना, तुम, क्या आएगा रदी तुम? डी, आप सब राजी आप हुए। सब राजी होवे, डी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नासिया का टेबल अभी हम कर लेंगे, उसमें हमारी जो होगी बुक। हल रदीता, हल क्या, आप, रदीता, रदीता, क्या क्या हो, आप खुश हैं? इसका एक माना खुशी भी है, क्या आप खुश है, क्या आप राजी हैं, कहते हैं ना, हम पूछते भी है ना, क्या हाल है, राजी बाजी पूछते हैं ना। तो ये सिर्फ पंजाबी के या उर्दू के अल्फाज नहीं है, ये अरबी से भी हमारी लैंग्वेज में शामिल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब रदिया में हमें क्या समझ आई कि रदिया में, क्योंकि आपको पहले ही नजर आ गया, रदिया समीआ, यानी कि हाँ, सामिया के पैटर्न पर है। अभी सामिया, तक हमने फतहा, नसर और दरबा के पैटर्न पर आने वाले कमजोर अफाल किए थे ना, अब ये जो हमारे हैं टेबल, ये है सामिया पे, क्योंकि अब ये रादिया में जो जेर थी, इसने बाकी सबको कट 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 कर दिया, क्योंकि फतहा, नसर और दरबा में किसी में भी हमें आइन कलमे पर जेर नजर नहीं आ रही। तब ये बताया गया कि आसानी के लिए या को अलिफ में बदल दिया गया, और रादिया या रुदा, ये ना जब हम इसको मजीद खोलते हैं फिर इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है, जो फिर असल टेबल होते हैं वो कुछ और ही होते हैं, लेकिन ये जो बोलने में आसान होते हैं उसी तरह से, या जिस तरह से हम इसको आसानी के लिए कहते हैं कि कुरानी मजीद में जिस तरह यूज हुए, फिर उसी तरह से उस टेबल को पूरा बना लिया जाता है। अब है यरदा, अब यरदा जो है, अभी हमने बात की थी याबा, अब उसको भी इसी तरह बना लीजिएगा, ये टेबल सामने रख के याबा याबुना ये पूरा कर लीजिएगा। अस्माउ यस्माउना, क्योंकि हमारे पास आइन जो था वो था सेहतमंद, या क्या है, कमजोर है, और इसने अब कोई हरकत नहीं ली, बल्कि द्वाद पे ये दोनों हरकत मिला के एक खड़ी जबर बन गई। अब इसका मतलब है कि खड़ी जबर अलिफ के कायम मुकाम है, यरदा। अब हमारी जो बोलने की प्रोनाउंसिएशन है वो भी अलिफ के साथ हो गई, यरदा। अब हमने जिस तरह से हमने कहा हदा हदऊ, इसी तरह से हम कहेंगे यरदा यरदऊ। अब यहाँ पे यहदी से यहदूना बना था, क्योंकि इसमें पेश थी। जब भी हमारे टेबल पर पेश या जबर आए, तो फिर हम पेश के साथ जमा बनाएंगे, खड़ी जबर जहां आएगी वहां फिर जबर के साथ बनेगा। ये आप इसको लिख ले, नोट ठीक। डाउन कर ले। ये इस तरह के हमने बहुत से टेबल पढ़ने हैं जिनमें यही वाली कंफ्यूजन हो जाती है, फिर इसी एक टेबल के अंदर रहते हुए भी हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन फेल अमर में भी जाके हो जाया करती है। तो इस बात को आप लिख लीजिए कि जहां पर आपको खड़ी जबर नजर आए,
उसके जमा में हमने जबर के साथ ही जमा बनानी है। जैसे यरदा, यरदौना, तरदा, अर्दा, तरदौना, नरदा और या तरदा। यरदा वो राजी होता है या होगा, यरदौना वो सब राजी होते हैं, तरदा आप राजी होते हैं, अर्दा मैं राजी होता हूँ, तरदौना आप सब राजी होते हैं, नरदा हम सब राजी होते हैं। अच्छा जी, जो तजवीद से वाकिफ है वो मुझे बताएं कि ये इसको हम क्या कहते हैं तजवीद में, ये जो जबर के साथ वाव आती है, कौन सा कायदा पढ़ते हैं हम? मदलीन। नहीं, मद्दलीन मद्देलीन, हाँ, यानी कि मद्दलीन नरमी से अदा वाव करना। वावलीन वावलीन वाउलीन है ये। और जी मद्देलीन दो वावलीन। होती है ना। मद्देलीन भी इसलिए कहते थे कि थोड़ा सा खींचते भी है ना, इसको लंबा नहीं हाँ करते, जी, ठीक है। इसको हम कहते हैं वाउलीन और यालीन, ठीक है। तर दऊना, अब इसको दऊ कहना, इसको दू नहीं कहना, ठीक है। दू कहेंगे तो मद दरदौना। बन जाएगी, ठीक है। तर जी दऊना, इसको बहुत तर दऊना नहीं करना, बस तर दऊना। ये तजवीद की क्लास नहीं है, लेकिन हम गलत नहीं पढ़ेंगे, हम उसको साथ साथ सही कर लेंगे। हल यरदा, नअम यरदा। जब आपने नाम आंसर यरदा। करने तो सब अनम्यूट किया करें। हल यरदौना, नाम नाम यरदौना। यरदौना, हल तरदा, नाम नाम नअम अर्दा, अर्दा। हल तरदौना, नाम नाम नअम नाम अर्दा। अर्दा। नर्दो। नाम नौरदा। अच्छा, ये जो हमारा पिछला था, मुझे ऐसे लग रहा हमने उसमें भी कुछ पढ़ा था। जी यरदौना। और आधा हमने पढ़ा था, सुम्मा और आधा। अच्छा, वो और थी, वो और अर्जी थी, ठीक हो गया जी। वो आइन वाला था हाँ, मेरा वो भी। आइन के साथ था, मैंने कहा हमने कुछ ऐसी बात की थी, ठीक हो गया जी। अरबी में तर्जुमा करना है, वो सब राजी हुए। डी यरदौ। यरदौना। यरदौना। ये तो मदारी रदू। ये गड़बड़ हो गई है। माजी है जी ना जी, जी, माजी राजी हुए। राजी राजी हुए, हुए तो फिर रद्दू होना चाहिए ना। रदू हाँ बना दे, ये आगे पीछे हुआ है, ये आगे पीछे कर रहे जी हैं, जी बिल्कुल। माजी आगे के साथ पीछे हुआ है। हाँ मुदारे जी, ये वाले आ रहे हैं, स्लाइड एक मुदारे के गड़बड़ साथ हुई है। माजी वाले। हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आगे है वतन सौना, तन सौना। अच्छा जी, नासिया का मतलब होता है भूलना। वा तन सौना, तन सौना, वा को अलग कर ले, अनपुसा को छोड़ दे भी, वा तन सौना, तुम तन सौना। तुम बस तुम भूलते तुम हो सब अपने तुम भूल आप सब को। जाते भूल हो जाते अपने हो, आप ठीक को। हो गया। सब, बी अनपुस, जान और वो कुमा, सब बी, बोलते हैं अपने आप को। ठीक हो गया जी। हल तौरदा अनहुम, हम ये क्या लास्ट वाला पहले बताइएगा क्या था। ना ये लास्ट वाला ना, और तुम सब भूल जाते हो अपने आप को। ये हमने करना है जो टेबल, मैंने ये नोट टेबल पूरा करते हैं, किया। ये अभी एंड पे पूरा टेबल करते हैं। मैं इसलिए इसको स्किप कर देती हूँ, क्योंकि अभी टेबल हमने किया नहीं ना, टेबल करेंगे फिर ज्यादा अच्छी समझ आ जाती है। ठीक हो गया जी। तरदा का हमने आंसर अर्दा से कर अर्दा। लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है रौदिया से कैसे बनना है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने कहा था। इसमा देखिए, या को काट दिया, हमारे पास रॉ जो है वो साकिन रह गई। दुआद की अपनी जो थी दुआद, वो खड़ी जबर की बजाय वो एक जबर में बदल गई। अब शुरू में एक हमजा लगाया। तीसरे के ऊपर हमने देखा कि जबर या हमारे पास जेर होगी तो हमने क्या करना है, जेर लगा देनी। शुरू में पेश होगी तो पेश लग जाएगी। दो सूरतों में जेर लगती है तो ये बन गया इरदा। रादिया योरदा इरदा, रादिया योरदा इरदा। अब इरदा इरदऊ, ला तरदा ला तरदऊ। ठीक हो गया जी। ये एक दफा दोबारा बता दें प्लीज कि ये अमर में जेर क्यों लगी है। अमर में जेर लगी है, ये हम एक छोटा सा हिंट बनाया हुआ हमने, तजवीदी रूल है वैसे ये। हम देखते हैं, इसको हम ना नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, 1 2 3। ठीक है जी। अब ये जो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे की हरकत देख लेंगे। अगर जेर या जबर में से कुछ हो तो हम अलिफ के नीचे जेर लगा देंगे। और अगर इसी तरह से जैसे हम करते हैं, 1 2 3, ठीक है, तो फिर हम तीसरे पे देख देंगे, पेश होगी तो हम पेश लगा देंगे इस पे भी। ठीक है।
अब समझ आ गई सिस्टर? जी ठीक है। जबर या जज़ाकल्लाह। जेर की सूरत में आरजी जेर, पेश की सूरत में पेश। इस एक को याद रख ले, ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक हो गया? आज का टेबल थोड़ा सा चेंज है, इस तरह के 4 टेबल है, तो इंशाल्लाह इसको हम पक्का कर लेंगे। हम पढ़ पढ़ के इसको बार बार पक्का करेंगे इंशाल्लाह। सिस्टर इसमें एक चीज और है कि जैसे हम जब नासारा करते हैं तो नासारा और दाराबा, तो इनका तो स्टाइल मतलब कि नासारा में क्योंकि वो पेश आती है तो हम उधर पेश लगा देते हैं फेल में, और इसी तरह दाराबा में जेर आती है तो हम जेर लगा देते हैं। सिर्फ फातहा और सामिया जो थे ना वो मिलते जुलते थे दोनों आपस में। वो पता है क्या होता है, हमने जबर और जेर, अब ये जो रूल है ना, ये तजवीद के रूल है। ये जो मैंने आपको बताया ना, थोड़ी मेरी तजवीद की भी क्लासेस चल रही होती हैं। जब हम अफाल का हमें पता ही नहीं होता कि कोई फेले अमर भी कोई चीज है, जब हम वो पढ़ रहे हो हमें ना पता हो, तो ये निशानी होती है एक कि पेश की सूरत में पेश लगा लेनी। आपने उसका पीछे वाला थोड़ी देखना, फिर हमने ये थोड़ी देखना है कि द्वारा यदरिबु के बाद यदरिब आया था। वहां पे हमारे सामने द्वाद रा बा और एक साथ अलिफ लगा हुआ है, दो के हमारे पास है, एक साकिन है और एक हमारे पास उसमें हरकत में है। जो शुरू वाला वो पीछे वाले के साथ, जैसे अभी आज के लेसन में हमने पढ़ा था कि आदम मुस्जुदू, यानी कि उसमें आदम के साथ उसजुदू मिला दिया गया। तो अब हमें ये थोड़ी पता चलता वहां पे कि ये इसमें जो पूरा साजदा यसजुदू है। तो ये ग्रंथ का तजवीद का रूल है कि हम तीसरे लफ्ज को देखते हैं। ये हाँ पहले जी तरफ जी हमने बाद में सीखे थे जी ना, सिस्टर। ये वाले होते हैं। हाँ जी जी सिस्टर, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूंगी। ये कोई मसला ये नहीं। कि हाँ जी, तीसरा लफ्ज की हरकत देखनी है। ये है कि अगर बस इसमें ये है कि जब जिस हरफ पे अलिफ लाम आ जाए तो वहां पे हमने लाजमी जबर लगानी है उस नहीं, हमजा पे, अलिफ के आप ऊपर। और हाँ चेंज बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं नहीं नहीं, होते ये हैं सिस्टर आप सही अस्मा, कह रही हैं, अस्मा समझ लग होंगे। गई। तो हाँ जी, वहां पे जबर हाँ, लगानी है। और अगर तीसरे हर्फ को तब देखना है जब उस हर्फ पे जेर जबर आ जाएगी, तो फिर हमने तीसरे हर्फ को देखना, अगर पेश होगी तो पेश हो लगेगी, अगर जेर या जबर होगी तो फिर अगर लाम के अलावा कोई और लफ्ज होगा तो वहां पे हमने जेर ही लगानी है। मैं अब ये आपको चीज इसका है फर्क बताती हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इसका जी। फर्क, आपको बहुत आसान हो जाएगा ताकि जी, आप। हमजा वस्ली इसको कहते हैं तजवीद के रूल में जी। अच्छा जी, अब ये जो है ये इसम है और ये क्या है, ये फेल है। ठीक है, अब ये जी जो फिर अस्मा है, अस्मा को हमजातुल वसल में फतहा ही लगेगी। इसमें हम इसको उल्लाजी इल्लाजी नहीं कर सकते। जैसे हम अल्लाह कहते हैं, अल्लाह के ऊपर हमें कोई नजर तो नहीं आ रहा था कि क्या शुरू में हरकत लगनी चाहिए। हम यहाँ पर एक खड़ी जबर लगाते हैं, लेकिन हमने कभी भी अल्लाह के ऊपर इस तरह से जबर नहीं लगाई। लेकिन ये अंडरस्टूड है, जब हम लिल्लाही के टुकड़े करते हैं तो ली को जब हम अलग करें तो हम प्लस अल्लाह कहेंगे, हम कभी भी इल्लाह या उल्लाह नहीं कहते ना। अस्मा जो होते हैं, अस्मा में हमजातुल वसल पे जबर ही आएगी। ये सिर्फ फेल अमर के लिए ये वाला, ठीक हो गया। ये जो जी जी फेल अमर में होगा, फेल अमर में हमने इसको इस तरह से गिनना है, बाकी चीजों में नहीं देखना। ठीक हो गया, नहीं तो फिर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। बाकी वही होगा ना कि लाम, जज़ाकल्लाह। वही होगा ना कि लाम आ गया ना, मसलन इसम में वो लाम ही आ गया तो लाम के ऊपर हमेशा जबर लगेगी पिछले अलिफ के ऊपर। हाँ जी, ठीक हो गया जी, हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर। आप लोग जरूर भी जरूर अपनी इस तरह से हमारे साथ ज्वाइन किया करें। जी, बारकल्लाह फी तो सिस्टर, इससे पता बारकल्लाह। क्या होता है, बाकी लोगों को भी अच्छी समझ आ जाती है। हाँ और जी हाँ मुझे भी, जी हाँ। जैसे मैंने आज अलहदा कर लिया इसको, वैसे हो सकता है मेरे दिल जी में वो भी ना आता कि मैं इसको असल अलग करके में, देखूं। हाँ जी असल में तजवीद का मेरा कोर्स चल रहा है ना, तो इसलिए जो समझ आए अल्हम्दुलिल्लाह तो जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके पढ़ने पढ़ाने में बरकत नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा जी, हल तौरदान हम ये हम कर चुके थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए थे इरदा इरदाऊ। ठीक हो गया, ला तरदा ला तरदाऊ। ये चेंज है इसका, ये भी इसी तरह से इस्मा से इस्माऊ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो इस्मा में 1 2 3 4 हर्फ है, जबकि इरदा में हमारे पास एक लफ्ज भी कम था ना, हमने वो जो या थी वो गिरा दी थी। अब उस या को गिरा के हमने इरदा बनाया था। तो अब इसमें जबर के साथ जबर ही पड़ी जाएगी, ये थोड़ा फर्क है बाकी टेबल से। इसके
सारे के सारे पूरे जो मुदारे थे उसमें भी जबर आ गई, इसके फेले अमर में भी जबर आ गई, और ये इसकी खास बात है कि ये आपको इस तरह से ही याद रखना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है रादिन, मर्दियुन और रिदाउन। इसका एक और भी बन सकता है रिदवानुन। ठीक हो गया जी, ये है रिदवान। रादून आ गया। हल अंतुम रादूना, अब अंतुम को किसमें बदलेंगे? नहनु, नअम नहनु रादूना। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरा टेबल आ गया। यहाँ पर हमें 2-3 जगह पर नजर आ गया है। अच्छा जी, चलें जी, ठीक हो गया। रदिया, रदू, रदिया, रदू, रदीता, रदीतु, रदीतुम, रदीना और रदियत। अब ये जो खास चीज है ना, आपने यहाँ याद रखनी है कि अब आपने यहाँ पर रदत नहीं बनाना। ठीक हो गया जी। अब इसको ये जो या हमने ऊपर जबर वाली है ना, हरकत वाली, उस या को हमने लाना है, पूरा पूरा लफ्ज लेके आना है। रा दी या फिर ता लगानी है। ठीक हो गया जी। अब बनेगा पूरा टेबल। रदिया, रदू, रदिया, रदू, रदीता, रदीतु, रदीतुम, रदीना और रदियत। यरदा, यरदौना, तरदा, अरदा, तरदौना, नरदा, तरदा, इरदा, इरदौ, ला तरदा, ला तरदौ, रादिन, मर्दियुन, रिदाउन। अच्छा जी, मर्जी, मर्जी जो ज़ुआत के साथ पढ़ते हैं उनको मर्जी, उससे भी ये याद रह जाएगा टेबल। जिससे राजी हुआ जाए, तो दूसरे की मर्जी पूरी हो जाए। कौन इस टेबल को रवानी से पढ़ेगा? जी जुएरिया सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रदिया, रदू, रदीता, रदीतु, रदीतुम, रदीना, रदीता। रदियत, रादियत, यरदा, रदियत, यरदा, यरदौना, तरदा, अरदा, तरदौना, नरदा, तरदा, तरदा ये था, सॉरी। हिया तरदा, इरदा, इरदू, ला तरदा, ला तरदू, रादिन, तरदौ, मर्दिय्य, ला तरदऊ, ठीक हो ला गया, तरदऊ, ठीक हो गया। रादिन, रादिन, मर्दियिन, रिजान, मर्दियुन, रिजवान। मर्दी। अच्छा, अगर आपको ये भूलता है ना कि हम इस पे जबर लगाएं या पेश लगाएं, आप इसको जी यहाँ से याद रख लें, फिर नहीं भूलेगा। आप जी देखिए कि ये जो हमने ये जो जमा वाला बनाया ना, फिर और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि तोरदा में तो एक वो छोटी आ रही है ना या, जिसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। अब आप देखें कि इसके आगे अलिफ लगा लेंगे, नून गिरा दी, ये बन गया ला तरदऊ। हाँ जी अब इसी का आप बना लेंगे ला तोरदा। कोई छोटी छोटी सी निशानियां रख लिया करें। फिर आप इसको कभी भी ला तरदा, ला तरदूना नहीं करेंगे। अगर हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे ना, ये नून को गिरा जी के ला लगा ले, ला तरदू, ये यही वाला ही बन जाता है। ठीक है, ये और आसान हो जाता है। ये ठीक हो गया। चलिए जी, हम आगे चलते हैं। टाइम भी कंप्लीट होने वाला है, हम इसको कंप्लीट कर ले। मैं चाह रही हूँ कि वक्त को भी थोड़ा सा कर ले। छह चाबियां दोहरा लेते हैं। रौदिया, यरदा, इरदा, रादिन, मर्दियन और रिदाउन, और एक इसका मसदर रिदवानुन भी बन सकता है। रौदियत खास चीज है, रौदियत खास चीज है, यरदौना खास चीज है, रदू ये बाकी टेबल से तब्दीलियां हैं, और खास चीज है इरदू। ठीक ठाक, ये सब समझ में आ गई ये वाली चीज। और रादिन, तो रादूना, रादीना, मर्दियूना, मर्दिजीना, इनके इस्मुल फाइल इस तरह से बनाए जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब है हमारे पास नासिया। अब इसको हम कर लेते हैं। अब उसी टेबल को हम सामने रखते हुए हम ऐसा करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि मुझे यहाँ पर कौन सी हरकत लगानी चाहिए, आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी इंशाल्लाह। जबर के साथ वाव, रजा के साथ पेश, हमने हाँ पेश, क्या, पेश। पेश, क्योंकि हमारी ये जो कमजोर है उसके ऊपर हरकत है। और यंसा का क्या बनाएंगे? यंसौ, इधर जबर लगेगी यंसौना,
इंसा का इंसाउ, इधर जबर नहीं लगेगी, पेश इधर तो इधर से जबर तो जबर आएगी ना। ये जबर जबर ही लगेगी। मैंने जबर ही लगाई थी, मेरी जबर ही पेश जैसी होगी। यनसौना, दोबारा लगाते हैं, या फिर पूरा टेबल भी करते हैं हम। ठीक है, बाकी उसी तरह से नासिन मनसियुन निस्यानुन, ठीक हो गया। अब ये है नासिया, इसके बाद हम कहेंगे नसू, नसीता, नसीतु, नसीतुम, नसीना और हिया नासियत। अब ये वाली या वापस आएगी, यनसा, यनसौना। अच्छा ये मैंने पेश लगाई है, ठीक हो गया। हाँ जी, ये यनसौना आएगा, यनसौना, यनसौना। सॉरी जी, ये पढ़ने में है, इसकी प्रैक्टिस तो ये मुझे पढ़ते हुए याद आ गया, तो क्या जी। अच्छा जी, यंसा, यंसौना, तंसा, अंसा, तंसौना, नंसा और हिया तंसा, इंसा, इंसौ, ला तंसा, ला तंसौ, नासिन, मनसियुन और निस्यानुन। ठीक हो गया जी। इसी तरह का एक और टेबल है, अगर वो ट्राई कोई करना चाहे तो जरूर करें, नहीं तो फिर मैं तो उसे कर ही दूंगी इंशाअल्लाह। खाशिया, खाशिया, यख्शा, इख्शा, खाशिन, मखशियुन, खशियातुन। अच्छा जी, अब खाशिया का कैसे बनाएंगे हम जमा? खश, खशु, खशु, हशु पे अल्हम्दुलिल्लाह, हशु, खशु और खशु और यक्षौना, यख्शौना, यख्शौना और इख्शा का इक्षौ, इक्षौ, इख्शौ। शौ, इक्षौ। ठीक हो गया जी। अब टेबल कर सकते हैं आप, यस यस सिस्टर। कीजिए। खाशिया, खशौ, सॉरी खाशिया, खशु, खश, रदीता, खशीता, खशीतु, खशीतुम, खशीना एंड खशियत। खाशियत, अल्हम्दुलिल्लाह, यक्षा, यक्षौना, तख्शा, अख्शा, तख्शौना, नख्शा या तख्शा। इख्शा, इख्शौ, ला तख्शा, ला तख्शौ, खाशिन, मखशियुन, खशियातुन। खाशियतुन, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मजीद आपके सीखने सिखाने में बरकत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। इसी तरह से बिल्कुल है लाकिया, लाकिया वो मिला, लाकिया, यलका, इलका, लाकिन, मलकियुन और लिकाउन। इसको हम कैसे करेंगे? लाकिया, लकू, लकीता, लकीतु, लकीतुम, लकीना और लाकियत, यलका, यलकौना, तलका, अलका, तलकौना, नलका या तलका, इलका, इलकौ, ला तलका, ला तलकौ। ठीक हो गया जी, लाकिन, मलकियुन और लिकाउन। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नासिया से कौन से बनेंगे अफ़आल 3? चले इसको छोड़ते हैं, ये आप माशाल्लाह काफी सारा हुआ, इसको कर लेते हैं। हो गया जी, ये जरूरी है, हमारी क्लास का टाइम आज कुछ ज्यादा ले लिया मैंने। अच्छा जी, हम सब राजी हुए, हम सब राजी हुए, पहले माजी में से आप अपनी तरफ वाला सीगा ले आए। रदीना, रदीना, नहीं रदीना, देर के साथ रदीना। रदीना। अब हम नासिया वाला टेबल वो सब भूल गए, नसैना, नहीं वो सब, वो नहीं सब नासू, नासू, नसाउ, नसाउ, नासू, नासू, ठीक हो नासू। गया जी। इतनी सी बात थी, इसमें हमारे कितने सारे वर्ड हुए। यन सौना, पहले सिर्फ इसको करें, यन सौना, उर्दू तर्जमा करें, यन सौना। यन सौना वो सब भूलते हैं, वो सब भूल जाते हैं, भूलते हैं, किसको भूलते हैं? अनफुसहुम, नफ्सों अपने को। अनफुसहुम, अपने अपने आप अपने को, नफ्सों को या अपने आप को, ठीक, दोनों तरह अपने से ठीक नफ्स है। इर्दा, इर्दा का हम पहले हमारे क्या तर्जमा करेंगे?
इर्दा राजी हो, राजी हो। अन खुश का हो। हमने तर्जुमा क्या किया हुआ है? अन से उससे राजी हो किससे? इब्नी का, अपने बेटे अपने से, बेटे से। इब्नी का, तेरे बेटा। हाँ, इब्न, इब्न बेटे को कहते हैं इब्न, इब्नी का। तो क्या जी, अब अरबी में जवाब दे नफी में, हल तंसल्लाह। माँ लिखूं के ला लिखूं? पहले तो मुझे ये ला बताओ। अंसी ला अल्लाह, ला अंसी अल्लाह, अल्लाह। अंसा। अन अनसा। ये कोई ज्यादा होते हैं तो आप इसको खत्म कर दिया कर। ठीक हो गया जी? ये या है, अगर नहीं लग रही तो इसको या बनाते हैं। ठीक हो गया? ये हमारा, ये जो हमारी है वर्कबुक का पेज। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। आज का लेसन थोड़ा सा था चेंज, मुश्किल तो नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आसान को, तो हम कौन होते हैं इसको मुश्किल कहने वाले। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रोजिया नासिया की तरह ही खाशिया जो पढ़ के देख भी लिया है, इसको आप कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर हमारी क्लास का टाइम भी कंप्लीट हुआ, अगली क्लास शुरू होने वाली है, तो हम इसे कंप्लीट करते हैं। ऐ अल्लाह, हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वबरकातुहू। जी बिल्कुल, दुआओं में याद रखा